Hello everyone. So in this video we will be talking about bills related to reproductive rights of women in India. So let's see. Okay, so first is PCN PNDT Act. So it stands for Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act 1994. So recently it was in news because Supreme Court upheld that no, it would criminalize the non-maintenance of medical records by gynecologists and obstetricians, and it can also suspend their medical licenses indefinitely. Also, during the times of COVID-19 pandemic, the health ministry has issued a notification in the month of April, जहाँ पे it was notified that certain provisions of under the PC and PNDT Act they would be suspended. Okay, so there were various speculations in the media that PC and PNDT Act has been suspended by the Ministry of Health and Family Welfare. So, in order to clarify, Ministry of Health and Family Welfare it clarified that it has not suspended the PC and PNDT Act, which prohibits the sex selection before or after the conception. Okay, so क्योंकि इतना न्यूज़ में था तो let's see what's there in the act. So first, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का जो मेन पर्पस था, इट वाज टू बैन द यूज़ ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन, बिकॉज जो सेक्स रेशियो था वो बहुत डेटेरॉइट हो रहा था. ठीक है. सेकेंडली, ऑल्सो टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस. ठीक है. सो अंडर दिस लॉ क्या होता है, जो भी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ द फीटस either in the pre-conception time or in the prenatal time, they have to be registered with the appropriate authorities. Okay. Other than this, it also prohibits the advertisements in relation to such techniques for detection or determination of sex. तो मतलब ये advertisements किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इन अ सर्कुलर फॉर्म और लेबल है या रैपर है या कोई डॉक्यूमेंट है या उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है नोटिस या अदर मीडिया जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट होर्डिंग्स है, वॉल पेंटिंग्स है, किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट उसका अलाउड नहीं है. एंड इट कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years and also a fine of 10,000 rupees. And the act also deals elaborately with the maintenance and preservation of proper records. So as we have seen, even Supreme Court upheld that so it has criminalized the non-maintenance of such records. Okay. And the appropriate authorities जो भी इस act के अंदर हैं, they are empowered with the powers of civil code for such search, seizure and sealing the machines and equipment, and also the record of the violators of the law, including the sealing of premises and even the commissioning of witnesses. ठीक है. And this law was amended in 2003 to improve the regulation of technology capable of sex selection. So this was about PC and PNDT Act, which is Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act 1994. Okay. Second is Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020, which is also called MTP. सो इस MTP बिल के अंदर क्या था, सो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड कि जो MTP अमेंडमेंट बिल जो था फॉर 2020 फॉर अमेंडिंग द MTP एक्ट ऑफ 1971, उसको अमेंड करने के लिए था, इसलिए रिसेंटली अप्रूव किया था कैबिनेट ने, इसलिए न्यूज़ में था. नेक्स्ट जो सेलेंट फीचर्स है, पहले देख लेते हैं कि इस एक्ट में ओरिजिनली क्या था, देन विल टॉक अबाउट जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स. ओके. सो जो ओरिजिनली MTP एक्ट था 1971 का, उसके जो प्रोविजंस थे, इट प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन ग्राउंड्स फॉर अबॉर्शंस. तो अगर विदिन 12 वीक्स अबॉर्शन हो रहा है तो उसके कुछ ग्राउंड्स है, जैसे कि इफ़ देयर इज़ रिस्क टू द चाइल्ड हु इज़ बॉर्न, या इट वुड सफ़र फ्रॉम फिजिकल और मेंटल abnormalities, या तो फिर जो प्रेगनेंसी कैन बी अ थ्रेट टू लाइफ ऑफ वुमेन और वुड कॉज हर ग्रेव फिजिकल एंड मेंटल इंजरी, या फिर वेयर प्रेगनेंसी इज़ कॉज ड्यू टू रेप और ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ओके. देन इसका एक और प्रोविज़न था कि इसमें कुछ क्राइटेरियाज भी प्रोवाइड किए थे फॉर अप्रूवल एट डिफरेंट स्टेजेस. सो जैसे कि फर्स्ट 12 वीक्स के लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगा 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से. बिटवीन 12 वीक्स टू 22 वीक्स आपको अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है तो अप्रूवल चाहिए होता था 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का. एंड बियॉन्ड 12 वीक्स अगर है तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ अलाउड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. ठीक है. सो फिर नेक्स्ट है कि इसमें अगर माइनर है, इन केस ऑफ अगर माइनर्स हैं तो और अबॉर्शन कराना है तो इसमें कंसेंट ऑफ गार्जियन इज़ नेसेसरी. एंड सेकेंड, जो इसमें जो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स था
उसका था कि जो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, इट वाज ओनली मेंट फॉर मैरिड वुमेन ऑन हर हस्बैंड, ठीक है। सो नाउ विल सी कि अब ये ओरिजिनल प्रोविजंस थे एमटीपी एक्ट 1971 के। अब देखते हैं कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या थे। प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थे, फर्स्ट तो था कि इट प्रपोजेज रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अप टू अगर 12 वीक्स तक होगा तो अगर अप टू 20 वीक्स हो रहा है तो सिर्फ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन अगर 20 या 24 वीक्स के पीरियड के टाइम पे अगर अबॉर्शन है तो फिर उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि बल्कि पहले जो प्रोविजंस थे उसमें था कि उसमें कोर्ट से बात करनी होगी, ठीक है। सेकेंडली, एनहांसिंग द अपर जेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज। अब 20 वीक्स तक तो ठीक है, लेकिन 20 से 24 से कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ के लिए ही है, जैसे कि वुमेन इंक्लूडिंग सर्वाइवर्स ऑफ रेप या विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, जैसे कि इंसेस्ट होता है सेक्शुअल रिलेशंस बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, या अदर वल्नरेबल वुमेन जैसे कि डिफरेंटली एबल वुमेन है, माइनर्स है, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट था कि जो लिमिट है 24 वीक्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, इट वुड नॉट अप्लाई टू सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज़ है। अगर मेडिकल बोर्ड ने देखा कि सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उन केसेस में आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी मेडिकल बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, फंक्शंस है और अदर डिटेल्स है, ये भी इस एक्ट में प्रोवाइड की गई है। ऑल्सो द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड, वो मतलब इसमें प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो भी नेम है या दूसरे जो डिटेल्स है वुमेन की जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है, इट कैन नॉट बी रिवील्ड एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथराइज इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, ठीक है। मतलब किसी और को नहीं, लेकिन जो पर्सन ऑथराइज्ड है उस टाइम के लॉ के हिसाब से बस उसी के सामने आप रिवील कर सकते हैं। नेक्स्ट थे कि एक हमने उसका प्रोविजन देखा था कि जो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इट वुड बी ओनली इट वॉज ओनली मेंट फॉर मैरिड वुमेन ऑन हर हस्बैंड, बट इसमें चेंज कर दिया गया एंड इसमें लिखा गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कंडीशन फॉर एनी वुमेन ऑन हर पार्टनर। तो मतलब इसमें मैरिज कोई कंडीशन नहीं रखा गया, इट कैन बी फॉर एनी वुमेन ऑन हर पार्टनर, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट MTP एक्ट। नाउ लेट्स सी surrogacy regulation bill 2020. So recently यूनियन कैबिनेट इट अप्रूव द surrogacy बिल जो था, ठीक है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे। सो बेसिकली जो ये surrogacy रेगुलेशन बिल आया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 2016, बट वहाँ पे वो लैप्स हो गया, 16 लोकसभा डिजॉल्व हुई तो देन अगेन इन 2019 द बिल वॉज री इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू replace 2016 वाला बिल, बट it got passed then sent to the upper house where it was referred to a select committee of राज्यसभा for scrutiny. तो फिर सेलेक्ट कमेटी ने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए और उन रिकमेंडेशंस के साथ अब जो बिल है वो अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैरोगेसी क्या होता है? तो सैरोगेसी होता है वेयर बाय अ वुमन कैरीज द चाइल्ड ऑफ अनदर वुमन विद एन इंटेंशन दैट द चाइल्ड शुड बी हैंडेड ओवर आफ्टर द बर्थ। मतलब सिर्फ जो जेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स का, सिर्फ उस टाइम के लिए उस दूसरी वुमन के वूम में रहता है चाइल्ड, उसके बाद में जो उसकी दूसरी जो बायोलॉजिकल मदर है उसको वापस चाइल्ड दे दिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैरोगेसी होती है, एक होती है ऑल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी और एक होती है कमर्शियल सैरोगेसी। तो जो ऑल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी होती है उसमें जो सैरोगेट मदर होती है उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए होता है अदर देन मेडिकल या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। मतलब ये पैसे के लिए नहीं होता है, इट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये हेल्प के लिए कह सकते हैं, सिर्फ उसी के लिए है, इसमें कोई अलग से आपको एक्सपेंसेस पे नहीं करने, लेकिन जितना जो मेडिकल खर्चा है या प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना खर्चा हो रहा है बस आपको वो देना है। नेक्स्ट इज कमर्शियल सैरोगेसी। कमर्शियल सैरोगेसी में होता है कि आपको कंपनसेट करना पड़ेगा सैरोगेट मदर को वेदर इन कैश और काइंड, ठीक है, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ से आपको अलग से उन्हें पैसा देना पड़ेगा, ओके। सो प्रोविजंस ऑफ द बिल देख लेते हैं। सो जो बिल था पहले बिफोर द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी वर इनकॉर्पोरेटेड, उसके पहले क्या प्रोविजंस थे? ये थे कि ऑल्ट्रिस्टिक और कमर्शियल सैरोगेसी में से जो बिल था उसने प्रपोज किया था कि सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी होगी एंड इट बैंड दी कमर्शियल सैरोगेसी, ठीक है। हु कैन बी अ सैरोगेट मदर?
तो इस बिल के हिसाब से सरोगेट मदर नीड्स टू बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल, मतलब जो भी इंटेंडिंग कपल है उनको अगर कोई सरोगेट मदर चाहिए तो वो सिर्फ एक क्लोज रिलेटिव ही हो सकती हैं, ठीक है। सेकंड जो डेफिनेशन थी इनफर्टिलिटी की, तो इसके अंदर डेफिनेशन दी गई थी कि जो भी इंटेंडिंग कपल है, ठीक है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनफर्टिलिटी इफ़ देव ट्राइड फॉर 5 years, ठीक है, इफ़ देव ट्राइड फॉर 5 years टू कंसीव द चाइल्ड बट वो नहीं हुआ तो फिर सर्टिफिकेट मिलता है उनको इनफर्टिलिटी का। सेकेंड इज़ पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, तो जो इंश्योरेंस कवरेज का जो पीरियड था इट वॉज फॉर द सरोगेट मदर इट वॉज फॉर 16 months। सेकेंड जो PIO होते हैं, OCIs होते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स होते हैं, तो और सिंगल वुमेन, डिवोर्सी, विडोज़, ये सब होते हैं, इनको कमीशन के हिसाब से सरोगेसी नहीं अलाउड थी, ठीक है। अब देखते हैं जो सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसके पास अब फाइनल जो प्रोविजंस बिल के होते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट चीज़ थी कि उसमें इंटेंडिंग कपल जो है उसका क्लोज रिलेटिव ही कोई सरोगेट मदर बन सकता है, बट इसके हिसाब से एनी विलिंग विमेन इंस्टेड ऑफ अ क्लोज रिलेटिव कैन बी अ सरोगेट मदर, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो गया कि अब जो विडोज़ और डिवोर्स विमेन हैं उनको भी वो भी सरोगेसी का बेनिफिट ले सकती हैं, ठीक है, बिसाइड्स इनफर्टाइल कपल। सो विलिंग यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया, उनका रीज़निंग ये था बिकॉज फैमिलीज़ आर बिकमिंग मोर एंड मोर और स्मॉलर दीज टाइम्स, तो क्लोज रिलेटिव ढूंढना हो सकता है मुश्किल हो जाए, इसलिए एनी विलिंग वुमेन, ठीक है। सेकेंडली the bill also proposes to regulate surrogacy by establishing National Surrogacy Board at the central level and State Surrogacy Board and appropriate authorities in states and union territories, ठीक है। इन्होंने कुछ बोर्ड्स भी सेटअप करने की बात की गई है। नेक्स्ट इज़ जो प्रपोज्ड इंश्योरेंस कवरेज था उसमें पहले जो हमने प्रोविजन देखे थे उसमें था 16 months, बट इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 months to 36 months, ठीक है, फ्रॉम द अर्लियर वर्जन। नेक्स्ट इज़ जो कमर्शियल सरोगेसी है जो कि पहले भी था, सेम इसमें भी अर्लियर वर्जन में भी जो था और इसमें भी सेम है कि कमर्शियल सरोगेसी विल बी प्रोहिबिटेड इंक्लूडिंग द सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एंड गैमेट्स, ठीक है। सो जब तक कमर्शियल सरोगेसी बैन नहीं हुआ था इंडिया में, इंडिया वाज अमंग द फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कमर्शियल सरोगेसी अलाउड था, ठीक है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, यूक्रेन एंड सम स्टेट्स इन USA जहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एथिकल सरोगेसी टू इंडियन मैरिड कपल्स, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल्स एंड इंडियन सिंगल वुमेन, मतलब इसमें किसी भी तरीके से फॉरेनर्स और इन सबको सरोगेसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज़ ओनली मेंट फॉर इंडियन मैरिड कपल्स या इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल्स, और दोनों जो कपल हैं पार्टनर्स हैं उन दोनों को इंडियन ओरिजिन का होना ज़रूरी है, ठीक है। इंडियन सिंगल वुमेन जैसे कि विडोज़ है या डिवोर्सी है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45 years, ठीक है, दे विल बी अलाउड टू ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस, ठीक है। सेकेंडली जो डेफिनेशन था इनफर्टिलिटी का, हमने अर्लियर वर्जन में देखा कि इट वाज इफ़ दे आर नॉट एबल टू कंसीव फॉर 5 years, ठीक है, इफ़ दे हैव ट्राइड फॉर 5 years, बट अब इसमें इस जो नया सिलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है उसके हिसाब से जो 5 years का ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा लंबा है फॉर अ कपल टू वेट फॉर अ चाइल्ड, सो उसको कम कर देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज 5 years का टाइम बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली जो नया बिल है इट इज़ साइलेंट अबाउट द पेरेंटहुड ऑफ LGBTQ कपल्स, मतलब ये उनके लिए नहीं है, इट इज़ ओनली मेंट फॉर द हेटेरोसेक्सुअल कपल्स, इवन सिंगल वुमेन के लिए नहीं है हु आर अनकेपेबल टू हैव अ चाइल्ड, सॉरी इट इज़ ओनली मेंट फॉर हेटेरोसेक्सुअल कपल्स या सिंगल वुमेन जैसे कि डिवोर्सी या विडोज़, लेकिन ये LGBTQ या किसी और के बारे में बात नहीं कर सकता है। तो दिस बिल हैज़ सम लिमिटेशंस बट फिर भी काफ़ी चीज़ें इसमें अलग है। सो दिस वाज अबाउट सरोगेसी रेगुलेशन बिल। Thank you for watching our video. If you like it, share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you.